Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel CS Ansar. This is CS Tuti Mahajan. Today, I'm going to discuss one-time condonation scheme to regularize UDIN. Let's see. ICI announces one-time condonation scheme to regularize UDIN. What is UDIN? It is a unique number generated on the UDIN portal for every certificate and other such documents that have been attested by a chartered accountant who have registered themselves on the portal. तो चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर कोई भी सर्टिफिकेट को टेस्ट कर रही है या कोई डॉक्यूमेंट को टेस्ट कर रही है तो उसके ऊपर एक नंबर जो है वो कंपलसरी हो गया, दैट इज कॉल्ड अ यूडीआईएन नंबर। और वो जो यूडीआईएन नंबर है दैट इज अ यूनिक नंबर जो कि यूडीआईएन के पोर्टल के थ्रू हम जनरेट कर सकते हैं। UDIN, Unique Document Identification Number, to reinvigorate the profession of accountancy in this fast-changing digitalized world and to curb the prevalent malpractice of fake certificates forged by non-CAs, an innovative concept of UDIN was introduced by the Council of ICI as mandatory council guidelines in phased manner from 1st February 2019 onwards. For the certificates, GST takes audit and all other attest assurance and audit functions. पहले क्या होता था, जो कि नॉन सीएस हैं वो भी सर्टिफिकेट इशू कर देते थे, सीए के स्टैंप लगाए, साइन खुद किए तो सर्टिफिकेट इशू कर दिया। कहीं ना कहीं ये सारी मिस्टेक्स जो भी हुई हैं ये सारी कंप्लेंट्स इंस्टीट्यूट तक गई हैं, जिसके लिए एक इनोवेटिव जो स्टेप है वो लिया गया है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यूडीआईएन का कंसेप्ट जो आया है, और यूडीआईएन नंबर कौन क्रिएट कर सकते हैं, जो सीए है और जो प्रैक्टिस में है वही यूडीआईएन नंबर जो है वो क्रिएट कर सकता है। UDIN portal. The UDIN portal facilitates the regulators, stakeholders to check the authenticity of the report, certificates, documents on real-time basis. Similarly, UDIN portal के अंदर क्या है, CAs ने अपना UDIN नंबर दिया, सर्टिफिकेट इशू कर दिया। अब जो स्टेक होल्डर्स हैं, रेगुलेटर्स हैं, जिसके लिए सर्टिफिकेट इशू किया गया है, जैसे लेट अस सपोज हमने कोई सर्टिफिकेट इशू किया बैंक के लिए, तो बैंक वाला जो है वहां पर उसी पोर्टल में जाके वो चेक कर सकता है कि यूडीआईएन नंबर जो हमने वहां पे अपलोड किया है वो सही है या गलत है। Gradually, many regulators, stakeholders like SEBI, RERA, CBDT, RBI, and banks are insisting upon UDIN on all documents issued by CAs. Recently, CBDT has made mandatory validation of UDIN in all the IT forms and reports which are issued by members of ICI. तो अभी जो लेटेस्ट आपने क्या देखा है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी पहले क्या होता था 15 डेज के अंदर, लास्ट टाइम क्या था कि 15 डेज के अंदर आप इशू कर सकते हो। इस बार उन्होंने एक मेजर चेंज क्या ला दी, जैसे ही हम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को अपलोड करते हैं वहां पर, तो वहां पे वो यूडीआईएन का नंबर डिमांड करता है। हम यूडीआईएन को डालते हैं तो वो उसको साइट वैलिडेट करती है। सो दैट मीन्स आपको पहले यूडीआईएन क्रिएट करके रखना अपने पास, देन ही आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को अपलोड कर सकते हो। Representations from the members. ICI has been receiving representations from its members that they have unintentionally missed to generate UDIN on their audit and assurance reports and certificates due to prolonged lockdown, closure of offices, non-availability of human resources in the offices, and therefore allow them to generate UDIN after the expiry of the permissible time limit as a one-time measure. कई सारे रिप्रेजेंटेशंस क्या आए, जैसे कि सबको पता है कि कोविड टाइम चल रहा था तो ऑफिसेज बंद थे या स्टाफ छुट्टी पर था, तो किसी ना किसी वजह से क्या हुआ कि हमने सर्टिफिकेट तो इशू कर दिए बट उसके ऊपर यूडीआईएन जनरेट करना रह गया, बट बाय मिस्टेक नहीं किया, इंटेंशनली नहीं किया, अनइंटेंशनली वो स्किप हो गया। तो उसके लिए रिप्रेजेंटेशंस जो है वो मेंबर से आई हैं इंस्टीट्यूट के पास कि हमें वन टाइम मेजर एक टाइम दिया जाए जिससे कि हम पुराने जो हमने यूडीआईएन जनरेट नहीं किए वो कर पाए। Few members have also requested to condone the delay in generation of UDIN due to unawareness or inadvertent error. One-time condonation scheme.
Considering various representations and the fact that UDN being a new initiative, and by the time the members were becoming well versed and accustomed to it, the life, including office work, got stuck due to this pandemic, the competent authority has decided to allow one-time condonation to its members for the earlier missed or late generated UDIs. तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है, इंस्टीट्यूट के पास काफी सारे मेंबर्स से रिप्रेजेंटेशंस गई हैं कि हम लोग कई सर्टिफिकेट्स के ऊपर या कई रिपोर्ट्स के ऊपर यूडीएन जो है वो जनरेट नहीं कर पाए हैं, तो उसके लिए वन टाइम कंडोनेशन स्कीम जो है वो इंस्टीट्यूट ने अनाउंस कर दी है कि इनकेस अगर आपने कोई पुराने यूडीआईन गलती से स्किप कर दिया है तो आज आप उसको जनरेट कर सकते हो। डिसीजंस, अब हम देखते हैं कि क्या डिसीजन क्या है। As a one-time condonation scheme to regularize the non-generation of UDIN, it has been decided that members will be allowed to generate the earlier missed UDINs for the document signed between 1st February 2019, जिस दिन से UDIN start हुआ है, to 31st December 2020. तो उन्होंने क्या कहा है, 1 फरवरी 2019 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट साइन किया है या सर्टिफिकेट्स इशू किए हैं जिसके ऊपर आपने यूडीएन स्किप कर दिया, दिस स्कीम विल बी मेड अवेलेबल फ्रॉम 1 जनवरी 2021 टिल 31 जनवरी 2021। 1 फरवरी 2019 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक अगर आपने कोई भी सर्टिफिकेट दिया है जिसके ऊपर आपने यूडीएन को स्किप कर दिया है तो उसके रिगार्डिंग आज आपको टाइम दिया गया है कि 1 जनवरी 2021 से लेके 31 जनवरी 2021 मींस 1 मंथ का टाइम दिया है। इस 1 मंथ के अंदर आप पुराने यूडीएन को क्रिएट कर सकते हैं। With this announcement, all delays in generation of UDIN by the members of ICAI for UDINs generated during 1st February 2019 till 31st December 2020 as a one-time measure stand condoned. तो ये आपको वन टाइम कंडोनेशन स्कीम दी गई है कि जो आपने जब से यूडीएन का पोर्टल स्टार्ट हुआ है, अगर आपने 31 दिसंबर 2020 तक किसी भी सर्टिफिकेट का यूडीएन क्रिएट नहीं किया तो आप उसको इस 1 मंथ के अंदर क्रिएट कर सकते हो। Members may please note that the above one-time condonation scheme would not be applicable for the documents where the respective regulators or other stakeholders require UDIN on real-time or as per the specified requirement. In case अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आपने इशू किया हुआ है जहाँ पे यूडीएन आपको उसी टाइम रियल टाइम रिक्वायरमेंट थी और आपने अगर उस टाइम पे वो नहीं दिया है तो वो नल एंड वॉइड है, उसका यूडीएन आप आज की डेट में क्रिएट नहीं कर सकते हो। Further, UDIN so generated has to be communicated to the management or those charged with governance for disseminating it to the stakeholders from their end. In case अगर आज आपने UDIN किसी सर्टिफिकेट का आपने जनरेट कर दिया है तो आपने जिसका भी जनरेट किया है उस मैनेजमेंट को या जिसके भी उसके ऊपर जो भी चार्ज है तो उनको आपको वो UDIN जो है वो कम्युनिकेट करना है। UDIN generated under this scheme would be treated as UDIN generated without any violation of the Gazette dated 2nd August 2019, read with 15 days window allowed for exceptional circumstances. अगर आपको आज की डेट में पता हो तो हम क्या करते हैं, यूडीएन जब भी हम क्रिएट करते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम 15 डेज बैक का टाइम है कि अगर हमने लेटेस्ट पोस्ट आज 15 है तो 15 को अगर हम कोई यूडीआईन जनरेट कर रहे हैं तो मैक्सिमम हम वो कितना पीछे जा सकते हैं, फर्स्ट तक 15 डेज बैक जा सकते हैं। तो लेकिन इस स्कीम के अंदर अगर आप कोई यूडीएन क्रिएट कर देते हो तो वहां पर वो जो 15 डेज विंडो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। मेरे पास कई सारे क्वेरीज आए हैं कि मैम वहां पर जब हम जनवरी, एक्चुअली क्या है पोर्टल तो हमें जनवरी का ही कैलेंडर दिखाएगा, जनवरी 2021, तो वहां पर तो मैम सिर्फ 15 डेज दे रहा, 15 डेज के पीछे नहीं दे रहा, तो हम इसको कैसे जनरेट करें। तो उसके लिए मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई थी जिसके लिए मैंने ये वीडियो भी बनाई। तो उसके अंदर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ईयर सिलेक्ट करना होगा। वो जनवरी में आपको टाइम नहीं दे रहा, वहां पे स्पेसिफिकली आपको बोला गया है 1 फरवरी 2019 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक। अगर कोई वहां पर आपने स्किप किया है तो उसको आप जनरेट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ईयर चेंज करना पड़ेगा। जैसे ही आप 2020 करोगे या 2019 डालोगे तो वहां पर वो आपका कैलेंडर जो है वो ओपन कर देगा, कोई भी डेट आप उसमें डाल के तो अपना यूडीएन क्रिएट कर सकते हो।
तो ये जो स्कीम आई है ये एप्लीकेबल हुई है 1 जनवरी 2021 से लेके 31 जनवरी 2021 तक। तो इन केस अगर आपने भी कोई ऐसे रिपोर्ट साइन किया, कोई सर्टिफिकेट साइन किया, कोई ऑडिट किया है, तो जिसका आपने यूडीएएन जो है वो क्रिएट नहीं किया टाइमली, तो आज आपके पास एक स्कीम है, उसके थ्रू आप यूडीएएन को क्रिएट कर सकते हो बैकडेट के अंदर। तो आई थिंक आपको ये फैसिलिटी जो है वो अवेल कर लेनी चाहिए, क्योंकि कई सारी मेरे पास क्वेरीज आई थी, कईयों ने जैसे कॉन्करेंट ऑडिट किया है उसका यूडीएन नंबर क्रिएट नहीं किया, तो आज इस स्कीम के थ्रू आप यूडीएन नंबर जो है वो क्रिएट कर सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल CS Ansar. Till then, keep following CS Tuti Mahajan, CS Ansar. Thank you.